Hello students, welcome you all to Manula classes. This is Ratnakar sir, and in today's class we are going to discuss a very seek after topic, which is how to overcome the fear of maths. Okay, now see, maths, or you can say maths fear or maths phobia, is getting very common among today's students, especially who are not so good in calculations and remembering formulas. So what is the best way out? Okay, we will talk about this in this class, and we will try to understand how to ace this particular problem. Okay, so let's start. So our admissions are now open for a 1 year course or a 2 year course. You can enroll with us today or tomorrow by calling us at this number 9971444054, or you can visit our website www.lawentranceindia.com and chat with us from that. Okay, now let us first talk about what is maths fear, what is maths phobia, or better known as maths anxiety. Okay, it is one's ability to do mathematics. Okay, it is an anxiety about one's ability to do mathematics. Many a times it is seen that not doing mathematics, but the fear of doing is becoming a major cause, and that is what striking people, or that is what hampering people to give their full potential in solving the problems rather than thinking to solve those problems. Okay, so we'll talk about them one by one. Okay, and we'll talk about the ways in which this phobia or this fear can be overcome. Okay, now the first thing we would like to point out is, see, calculation is a different thing, and the thought of calculation is a different thing. Okay, similar, just as work is a different thing and thinking about work is a different thing. Okay, now the major problem is not calculation, the major problem is the thought of calculation, that how I am going to do that, or I am going like this, am I right, am I wrong, we don't know that. Okay, मुझे नहीं पता कि मैं ये प्रोसेस कर रहा हूँ ये सही है या गलत है. दैट इज बिकमिंग द मेजर कंसर्न. और क्लास में एक प्रॉब्लम मुझे दिया गया, पूरे क्लास को दिया गया, पूरे क्लास में 50-60% पीपल कर लिए, हाथ उठा लिए, लेकिन मेरा हाथ अभी तक डाउन है, मेरा पेन अभी तक चल रहा है. एंड दैट constant fear, or that constant, we can say, steps is demotivating me, or is making me to think that am I good at maths, or why I am taking so much time and my friends, my peers are not. See, what I seek, and what I will say, that math is just not like any other subject. Okay, math is just not like any other subject, and in this subject what you have to actually focus upon is how do you see the problems. Okay, that is the very common part, and that is the very essence of problem solving. Okay, the main part or the main time is not spent on the calculations. The main time is spent on to think और टू अंडरस्टैंड द गिवन प्रॉब्लम. ठीक है, सपोज मुझे 3 से 4 लाइन का कोई प्रॉब्लम दिया है, या 5 से 6 लाइन, या 8 से 10 लाइन का कोई प्रॉब्लम दिया है. मैं ये सिंपली बोलना चाहता हूँ कि मेन जो टाइम है वो प्रॉब्लम में कैलकुलेशन में नहीं जाता है, मेन टाइम जाता है उस प्रॉब्लम को पढ़ के समझने में. ओके, अगर प्रॉब्लम पढ़ के हमें तुरंत समझ में आ जाए कि हमें क्या करना है, देन इट्स अ पीस ऑफ केस वर्क, इजंट इट? तो उससे अच्छा कोई सब्जेक्ट है ही नहीं. ओके, सो कैसे हम लोग इसे अचीव करें, पहला चीज़, और क्यों बच्चे अचीव नहीं कर पाते, ये दूसरा चीज़. इन दोनों पे हम लोग बात करेंगे, एक एक करके बात करते हैं. सबसे पहला चीज़, अगर मैथ्स में अच्छा होना है, देन यू मस्ट बी सैक्रोसैंट, यू मस्ट बी वेरी रिलीजियस विद द कॉन्सेप्ट एंड विद द फॉर्मूलाज. ओके, बिकॉज देखो, कोई भी बिल्डिंग बिना बिल्डिंग ब्लॉक्स के, बिना ब्रिक्स के, बिना टार के, बिना सीमेंट के नहीं बन सकता. एंड सेम गोज फॉर मैथमेटिक्स ऑल्सो. You must have a conceptual strong foundation in the chapters, in the parts, in the portions of which problems you are going to solve. ठीक है, अर्थमेटिक हुआ, चाहे अलजेब्रा हुआ, चाहे मेंसुरेशन हो, चाहे ज्योमेट्री हो,
चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे कोई भी पार्ट हो, नोन अननोन, ओके, अच्छा लगता हो नहीं लगता हो, डजेंट मैटर। द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दैट इज उस चैप्टर का, उस पर्टिकुलर सेगमेंट का तुम्हें कॉन्सेप्ट्स एंड इम्पॉर्टेंट जो भी फॉर्मूलाज है वो आना चाहिए। जब मैं बोलता हूँ आना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें फॉर्मूला रटा होना चाहिए। जैसे अगर मैं पूछूँ ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, तुम तुरंत बोल रहे हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी सी, ओके, दैट्स अ फाइन थिंग। लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला आया कैसे, ओके, इसके इंटरप्रिटेशंस क्या हैं। नाउ दैट विल फील लाइक अरे सर ये आप क्या बोल रहे हो, ये तो हमसे कभी पूछा नहीं जाता कि भाई ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये कैसे आए तुमसे कभी पूछा नहीं जाता, ये तो हमारे एग्जाम का पार्ट नहीं है। एंड दैट इज वॉट इज एक्चुअली हैम्परिंग यू। यही चीज़ जो है, यही थॉट जो है, ये तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है। किस तरह से? सी, वंस यू नो दैट ए प्लस बी होल स्क्वायर कैसे आया खुद से बिना बुक पढ़े, जस्ट थिंक अबाउट इट लाइक दिस ना, दैट ए प्लस बी होल स्क्वायर, एनीथिंग होल स्क्वायर मीन्स व्हाट, एक्स स्क्वायर मीन्स व्हाट, एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स। So a plus b whole square means a plus b multiplied by e plus b, and you know how to multiply 2 and 2, मतलब two segment factors, you can multiply and get the result, isn't it? Then you will get a square plus ab plus ba plus b square, and because ab is ba, you write them both as 2ab by adding them, isn't it? So simple. But once you realize this by your own, there is a very little chance that you are ever going to forget that, isn't it? वेर बाकी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं है, isn't it? बाकी अगर तुम सब्जेक्ट देखो, तुम्हारे जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, बी इट साइंस, बी इट आर्ट्स, ओके, आई एम नॉट नेमिंग देम और आई एम नॉट रिव्यूइंग देम, बट यू नीड टू कॉन्स्टेंटली रिवाइज देम, isn't it? बाकी सब्जेक्ट में क्या है, तुमसे हो सकता है भूल जाओ, अगर तुम 2 साल 3 साल ना देखो तो हो सकता है भूल जाओ, बट मैथ्स वन अंडरस्टैंडेबल, the second time that you are going to take time on this will be very less, comparatively much less than any other subject, okay? तो पहला चीज़ जो मैं सबको बोलूँगा, जो लोग का मैथ्स वीक है, वो ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि उन्होंने वीक अपने लिए उसे कर लिया है, उन्होंने सिर्फ ये मान लिया है ये चैप्टर, इसके ये फार्मूला मुझे देख के अप्लाई करना है। उन्हें कभी ये नहीं सोचा कि फार्मूलाज कहाँ से आए। जब मैं बोलता हूँ ये फार्मूलाज कहाँ से आए, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तुम्हें फार्मूला का डेरिवेशन जानना चाहिए, इसका मतलब ये भी है कि डेरिवेशन जो तुम करोगे तुम्हें ये भी पता चलेगा कि उसका एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ और किस किस केस में हम लोग कर सकते हैं, एंड दैट इज़ आवर फाउंडेशन पार्ट, ओके। सेकेंड प्रॉब्लम इज द लैक ऑफ प्रॉपर प्रैक्टिस, ओके, द लैक ऑफ प्रॉपर प्रैक्टिस। मैंने पहले ही कहा मैथ ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसका तुम बिना प्रैक्टिस किए तुम स्किल कर सकते हो, ओके। फ्रॉम एवरी चैप्टर यू हैव टू सॉल्व गुड अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम्स, मे बी 50, मे बी 60, मे बी 100 प्रॉब्लम्स टू गेन कॉन्फिडेंस इन दैट चैप्टर, इजंट इट? तो मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तुम्हें प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तुम्हें वीकली और यू कैन से बाई वीकली कम से कम 15 से 20 पन्ने या कम से कम 50-100 प्रॉब्लम्स तुम्हें प्रैक्टिस करने होंगे, and that is I think not much to ask for because that is roughly 1 to 2 hour a day, okay. You can take some day off, okay, हर दिन मैथ पढ़ना जरूरी नहीं है, 2 दिन you can take off, but rest 4 to 5 days you should focus on, okay, just like any other subject. Now the third point is to acknowledge the fear, ठीक है। कुछ लोग को हो सकता है मैथ से डर लगे, कुछ लोग को हो सकता है न लगे, डजेंट मैटर, जो लोग को नहीं लगता बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो लोग को लगता है उन्हें पहले ये समझना चाहिए कि हाँ मैथ मुझे डर पहुंचा रहा है, इसे एक्सेप्ट करना चाहिए और फिर इस डर से कैसे प्रैक्टिस करके निकलना है इसका रास्ता सोचना चाहिए, ओके। एक्सेप्ट इट दैट ओके दिस पोर्शन और ये पोर्शन मुझे समझ में नहीं आ रहा, ओके, इस पोर्शन से मुझे डर लग रहा है। सी, अगर तुम उसे छोड़ के चले जाओगे, मेन पता है 90% प्रॉब्लम क्या है, किसी न किसी क्लास में कोई ना कोई चैप्टर समझ में नहीं आया था, से क्लास 4 में ये चैप्टर समझ में नहीं आया था, छोड़ दिया, वहाँ से 2 क्वेश्चन आए, क्या फ़र्क पड़ता है, 100 में 80-90 आ गए, मदर फादर खुश, मैं भी खुश, टीचर्स भी खुश, डजेंट मैटर, ओके, नो प्रॉब्लम। उसके बाद क्लास 5 में उठा, 6 में उठा, 7 में उठा, ठीक है, 1-2 चैप्टर होता है समझ में ना आया हो, फिर इसमें भी समझ में ना आया, मैं छोड़ता गया, और 9, 10, 11, 12 आते आते एक ऐसा सेक्शन आ गया कि अब मुझे बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और अब अगर मैं छोड़ता हूँ, अब तो मेरे पास छोड़ने के लिए ऑप्शन नहीं बचा है कि मुझे तो बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे 50% सिलेबस इज आउट ऑफ माई ग्रैस्प, ठीक है, ये हो गया है।
एंड इसका कारण ये समझना पड़ेगा, इसका कारण मे बी यू आर नॉट, मे बी यू आर, लेकिन समझना पड़ेगा ये उन्हीं लैक ऑफ एबिलिटीज़ का, उसी लैक का, उसी नेगोशिएशन का ये रिज़ल्ट है जो तुम इतने साल से करते आए थे। ओके, कोई चैप्टर आता है नहीं आता है, डजेंट मैटर। ओके, तुम्हें हर एक क्लास में हर एक चैप्टर अच्छे से करना चाहिए था। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, इट्स नॉट सच अ बिग थिंग। ठीक है, वंस तुम क्लास 9-10 में पहुंच चुके हो, तुम अगर क्लास 4-5 का कोई बुक उठाओ, तुम्हें वो बहुत 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 आसान लगेगा। एंड मे बी जो प्रॉब्लम तुम उस वक्त नहीं कर पा रहे थे, यहाँ तुम विदाउट एनी हेल्प उसे कर लो। ओके, तो पहले तुम एक बार ये स्ट्रीमलाइन कर लो कि जितने भी चैप्टर्स थे, जितने भी कॉन्सेप्ट थे अप टू स्कूल लेवल, मे बी अप टू क्लास 10 लेवल, ये तुमने अच्छे से सीखे हैं या नहीं। ओके, अगर नहीं सीखे हैं तो उन्हें एक बार रिवाइज करो, एक महीना का ब्रेक मारो, एक महीना तुम टाइम निकाल लो कि हाँ तुम्हें हर दिन 2 घंटे पीछे के क्लास का मैथ का रिवाइज करना है। आई एम नॉट आस्किंग तुम हर प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओ, लेकिन हाँ तुम ये कर सकते हो, हर चैप्टर से जो लास्ट के 5-10 प्रॉब्लम है उन्हें तुम सॉल्व करो। ओके, दैट विल एक्चुअली डिटरमाइन कि उस चैप्टर में तुम्हारा पकड़ कैसा है। ओके, ऐसा ना करना कि 3-4 बुक से मैथ सॉल्व करना चालू कर देना और कोई बुक ख़त्म ना करना। ओके, बुक एक तरह से अरेंज होता है, बुक में क्या होता है कि कुछ इजी प्रॉब्लम जो है वो पहले आते हैं, मॉडरेट उसके बाद, और हार्ड प्रॉब्लम्स एकदम लास्ट में आते हैं। तो इफ़ यू आर सॉल्विंग फ्रॉम 3 बुक्स और तुम हर एक बुक से आगे वाले इजी और मॉडरेट वाले सवाल लगा ले रहे हो, हार्ड वाले तुमसे नहीं हो रहे हैं, तुम बिना पूछे छोड़ दे रहे हो, तो दैट विल एक्चुअली हैम्पर योर डेवलपमेंट। ओके, तो ऐसा नहीं करना है, तुम्हें कोई बुक उठा के से पूरा सॉल्व करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम इससे पहले के जितने तुम्हें कॉन्सेप्ट्स हैं वो तुम्हें अच्छे से आते हो। डजेंट मैटर तुम्हें मैथ में अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं उससे बिना पढ़े या ना पढ़े, डजेंट मैटर। ठीक है, वो तुम्हारे आगे काम नहीं आएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड थिंग इज़ टू अप्लाई मैथ इन रियल लाइफ। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो सकता है तुम अप्लाई ना कर पाओ, स्पेशली जो नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं उन्हें हो सकता है मैथ का एप्लीकेशन जो 11-12 का मैथ्स से इतना ना दिखे, लेकिन अप टू क्लास 10 का मैथ्स तुम हर दिन एप्लीकेशन में ले आते हो, है ना। तुम हर दिन बाजार जाते हो, शॉपिंग पे जाते हो, वहाँ पे तुम कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, डिस्काउंट, ये सारे टर्म्स सुनते हो, ये सारे के सारे मैथमेटिकल टर्म्स हैं, isn't it? Every transaction you do on your daily basis is basically a transaction of either profit or loss or nothing, isn't it? So you can apply the short term hacks or you can apply the short term things in your day to day life. इसको करने से एडवांटेज जो होगा, तुम बहुत सारे कैलकुलेशन मेंटली करने लग जाओ, and that will actually help you to overcome from the fear of calculations. Actually, the fear of math is often misconfused as fear of calculations. Both are not same. One is inability and second one is the will to do it or not. Okay, now last point is student hesitate to ask questions. Okay, now that can be one of the problems which I don't totally blame on students alone. Maybe कभी कभी हम लोग टीचर्स भी स्टूडेंट का प्रॉब्लम ठीक से उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते। ठीक है, सी इट्स अ बोथ साइडेड थिंग। ओके, हम टीचर्स हैं, हम अपना बेस्ट देने की कोशिश हमेशा करते हैं, एंड स्टूडेंट भी अपना, आई थिंक, आई होप स्टूडेंट हमेशा अपना बेस्ट लेने की कोशिश करता है, बट वी टू आर ह्यूमन बींग्स, इजंट इट। हो सकता है स्कूल के सर का उस वक्त मूड ठीक ना हो सकता है तुम्हारा क्वेश्चन वो उस वक्त आंसर ना कर पाए। यू कैन आस्क अगेन हिम और हर पोलाइटली एनी अदर डे, आई एम श्योर ही विल लाइक टू हेल्प। ओके, एंड रिमेंबर मैथ इज बेसिकली मैथ अच्छा तभी होगा व्हेन यू आर इन गुड पीस ऑफ माइंड, व्हेन इन गुड स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, तुम रश में मैथ नहीं कर सकते, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, सो आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। अगर आंसर नहीं मिलते हैं, कॉम्प्लीट आंसर नहीं मिलते हैं, लेकिन आजकल के टाइम में सबके हाथ में स्मार्टफोन है, एनी वन कैन गूगल एंड सर्च। और आई थिंक अभी तक इतना टेक्स्ट, इतना कंटेक्स्ट, इतने ऐप, इतना मटेरियल नेट पे आ चुका है कि आई डोंट थिंक कि तुम्हें और किसी की ज़रूरत पड़ेगी अगर तुम्हें कोई माइनर डाउट सॉल्व करने हैं, है ना। इवन तुम एक बार कई बार ये भी कर सकते हो कि हो सकता है तुम्हें वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन गूगल के ही किसी न किसी साइट पे मतलब सॉल्व किया हुआ मिल जाए एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द fear, and
हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ मैथ्स। आई होप यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर हुए होंगे। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन you can definitely ask in the comment section. We will definitely try to revert that, and we will revert that as soon as possible. Okay, so thank you so much.